ऑल साइंस कैसे हो? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो of the AC, the quality factor or the Q factor, and LC oscillation. L inductor, C capacitor, and both L and C both are connected parallel across L and C. This is the LC oscillation, and this is in fact the tank circuit. So what are the basic concept of this LC oscillation? How the EM wave comes out or radiate, how the energy is going to oscillate between L and C. So that we are going to discuss, and the quality factor. One important ratio is there, quality factor in LCR series circuit, especially in AC appliances. Okay. One topic is there, Q factor, quality factor in LCR series circuit at the resonance condition. The meaning of the Q factor is that ratio of voltage developed across inductor or voltage developed across capacitor at the resonance condition to the voltage applied across the resistor of the circuit. That means Q factor is equal to VL or VC by VR. That we can write XL means I into XL by I into R, or in place of VC we are writing I XC by I into R. So I cancel, we can write it XL by R or XC by R. That is, we know that VL is equal to I into XL and VC is equal to I into XC. So that's why putting the value of this and I cancel this like that, and ultimately it is this. Q factor is this. Now we can write separately this and this. Q is equal to XL by R, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो ओमेगा L by R हो गया. एंड सेकेंड टर्म अगर ये वाला ले रहे हैं तो क्या हुआ, XC by R, दैट इज इक्वल टू 1. XC मीन्स 1 by ओमेगा C, तो 1 by ओमेगा C into R. These two are the important formula for the Q factor. It is a quality factor. So we can write Q is equal to, now here just to see, in place of the omega, we know omega is equal to 1 by under root LC, that we know. So if we are putting the value, अगर इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाले में पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 by LC है ना, तो ओमेगा का हो गया 1 by अंडर रूट LC यहाँ पर इंटू L by R. इसका वैल्यू हम लोग अंडर रूट L, तो ये हो गया 1 by R इंटू अंडर रूट L by C. ये फॉर्मूला निकला एक्सप्रेशन किसका, Q फैक्टर का. अगर सेकेंड टर्म हम लोग ले रहे हैं तो देखते हैं कितना होता है, 1 by, अब ओमेगा का वैल्यू है अंडर रूट LC इंटू C इंटू R. कितना ओमेगा का वैल्यू कितना है, दिस 1 by इतना है ना, 1 by, तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, LC अंडर रूट, ये इतना हो जाएगा C इंटू R इज इक्वल टू रूट C, और यहाँ C कितना हो जाएगा, ये 1 by R अंडर रूट L by C. Again the same, by taking this and this we are getting this particular value.
So Q is equal to 1 by R under root L by C. It is also known as voltage multiplier of the circuit. It is Q factor is just a number. ये क्या है? एक नंबर है which varies from 10 to 100 for VHF, very high frequency. Second point of the Q factor is that it measures the sharpness of the circuit at resonance condition, or we can write the sharpness of the resonance. Sharpness, better is that sharpness of the resonance. If we are going to draw a graph between I and omega, we will get the graph like that. Here it is maximum or peak value omega naught. Some points are also there. If Q factor is large, then bandwidth of that frequency, BW means bandwidth, is small. That means sharper is the resonance curve. That is, circuit is more selective. Similarly, if the Q factor is less, then bandwidth is large and resonance curve is less sharp. Less sharper is what? Resonance curve. So in fact, this Q factor is basically designed for the quality of that particular device. So to see the different parameters, this is one of the parameter of finding that whether the device is proper or not, how much is the sharpness, like that. Okay. Another topic is that LC oscillation, the basic idea. LC oscillation is in fact it is produced by the exchange of energy between a capacitor and an inductor are called LC oscillation. Capacitor means in the capacitor energy stored is the electrical energy, and in inductor we know the energy stored in the form of magnetic energy. So this for the LC oscillation we require the tank circuit. This is known as the tank circuit. हमको अगर LC oscillation प्रोड्यूस करना है, इससे EM वेव निकालना है, तो LC सर्किट मीन्स टैंक सर्किट हमको मालूम करना होगा. L इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल कनेक्ट होगा. दिस इज योर टैंक सर्किट. सो एनर्जी का कन्वर्शन है. कौन सा एनर्जी?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो रहा है किस में, मैग्नेटिक एनर्जी में, एंड फिर मैग्नेटिक एनर्जी ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, कैपेसिटर में, और मैग्नेटिक एनर्जी किस में होता है, किस में, किस फॉर्म में, किस कंपोनेंट में स्टोर होता है, दैट इज इंडक्टर में। और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज Q²/2C, और हम लोग जानते हैं ये एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² भी होता है, ये अलग फॉर्म है, ये तो मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इंडक्टर में। इंडक्टर में एनर्जी कितना, हाफ Li²। तो ये पूरा एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये फिर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा अगर डैम्पिंग नहीं हुआ तो कंप्लीटली कन्वर्सन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, एंड मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ if I am going to draw a graph between amplitude of current and charge, and here the T, then the graph is like that. ग्राफ मेरा ऐसा मिलेगा। ये रिप्रेजेंट कर डॉट डॉट लाइन एंड कंटिन्यूस लाइन। डॉट डॉट लाइन मान लेते हैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कंटिन्यूस लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। तो जहां पर चार्ज मैक्सिमम, चार्ज जब मैक्सिमम है, करंट ज़ीरो। इस तरह से दोनों का इनवर्स रिलेशन यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये टैंक सर्किट है LC ऑसिलेशन का। अब देखिए मैथमेटिकल पार्ट में तो कि यहाँ पर ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है। इस केस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस across C should be equal to potential difference or potential developed across L। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर Q/C, हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़े थे, V इज इक्वल टू Q/C मीन्स Q इज इक्वल टू CV होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C इज इक्वल टू, अब इंडक्टर में क्या होता था याद है, -L/di/dt, सेल्फ इंडक्टर में कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq/dt, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो Q/C प्लस L d/dt, I की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, dq/dt इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को हम लोग अब रीअरेंज कर देते हैं, L d²Q/dt² डबल डिफ्रेंशिएशन प्लस Q/C इज इक्वल टू 0, d²Q/dt² प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा इक्वेशन आया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग को मालूम है d²x, क्लास 11 में था, d²x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो मेरा यहाँ पर देखिए वेरिएबल यहाँ q है, यहाँ x था, x का कोफिशिएंट ω², तो q का कोफिशिएंट मीन्स 1/LC। तो यहाँ पर कंपेयरिंग
कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस, इधर कंपेयर करने से मेरा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, √LC हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल 2π न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1/2π √LC। इस फ्रीक्वेंसी से वो एनर्जी ऑसिलेट होते रहेगा, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या इसका दूसरा नाम भी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज। इसको ये भी लिख सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर होते रहता है, इससे एनर्जी इसमें, फिर इससे इसमें, ये फुल हो गया इसमें, इससे फिर इसमें, ये कंटिन्यू। और जहाँ पर भी, और ये ऑसिलेशन, एनर्जी का ऑसिलेशन कैसा हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जहाँ पर भी इस तरह का ऑसिलेशन हो रहा है तो EM वेव निकलना शुरू होता है। दैट इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।